आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? टेल मी इन द चैट बॉक्स. ओके, दिस इज योर फेवरेट DG मैम ऑन द Vedantu Neat Made Easy channel, and I am back with the second part of strategies in enhancement of food production, or strategies for enhancement in food production. So we are just discussing about the Ranitiyas, okay, how to increase the production of khadya of food, right? So in the last lecture, if you had seen, you remember that we completed animal breeding. याद आया? Inbreeding, outcrossing. Who can tell me one difference between outcrossing and inbreeding? Are they same? Are they different? थोड़ा सा पता करते हैं कि आपको कितना याद है. ठीक है, so that's very important that you should not forget कि हमने पहले क्या पढ़ा था. So this is for NEET CBSE 2021. ठीक है, so who can tell me in the chat box? My dear kids, ma'am is there in the chat box, don't worry. Who can tell me in the chat box, inbreeding and outcrossing के बीच में what is that one difference which we talk about in the last session? कौन है वो जाबा सिपाही? तो फिर मैम शुरू करेंगी अगला पार्ट, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स मेथड. आई वांट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो मैं देख लूंगी, डोंट वरी. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एज यू नो, दोज हु हैव आंसर्ड, इन ब्रीडिंग मीन्स वी आर ब्रीडिंग, you know, we are doing the mating between the same breeds having common ancestors. But when we talk about outcrossing, we are doing the mating within same breeds, but they should not have common ancestor, right? And we also discussed about MOET, and हमने discuss किया था artificial insemination. Now we are moving ahead to the chapter. So start करने से पहले I am going to explain you plant breeding and its method beautifully, ठीक है? But उससे पहले yes, Sumaya ma'am, thank you so much for the slides, for the efforts that you put. जितना डिटर्मिनेशन आप दिखाते हो स्लाइड्स बनाने में. सो गाइज, वन हार्ट फॉर SM, फॉर सुमैया मैम. ओके, सो स्टार्ट करें आज का ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वंडरफुल, सुपर से भी डुपर सेशन, माय डियर किड्स. Shall we start? Yes. So let's just start with today's topic. So in today's topic, we are going to discuss about plant breeding. We'll discuss what is plant breeding. We'll discuss steps in plant breedings. Then we'll see the methods, okay, disease resistance. Then we'll see plant breeding for development of resistance to insect pest and for the improved quality. जैसे जैसे हमने plant breeding किया, इनका क्या examples थे, so we'll discuss that. Okay, so but उससे पहले please my dear kids, subscribe to the channel, click on the bell icon and all पे click करना मत भूलना, ठीक है? ओके, एंड येस, प्लीज़ ज्वाइन द वी नीट ऑफिशियल टेलीग्राम ID. आपको एक होमवर्क मिला होगा लास्ट डे, सो प्लीज़ चेक द होमवर्क. द आंसर की इज़ विद द होमवर्क एज वेल, ठीक है? जो आपको होमवर्क दिया है, एंड में आंसर की भी प्रोवाइड की गई है, एंड देयर आर टू चैप्टर्स एक्चुअली जिसका होमवर्क आपको दिया गया है. सो लेट जस्ट स्टार्ट. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द नीट ऑफिशियल, वी नीट ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप. कैसे इंस्टॉल, कैसे मतलब ज्वाइन करोगे, राइट? इंस्टॉल द टेलीग्राम एंड देन just click on the link and you will be a part of the family. Okay, so आगे बढ़ते हुए I'll just talk about this. You already know, right? So there are batches which already started from 10th of August. So you can learn, you can test yourself, you can boost yourself. You have much more, and what is that much more? Recorded sessions है, tips है, tricks है, which every teacher is going to give you. We have analyzing part also. So ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, learn, test, boost, analyze and much more. Okay, so yes, so all my NEET 2020 kids, I know you are very tensed. Don't be stressed, don't take tension. You remember I had given one motivation session, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे that मैम आप क्यों फेवर में हो. so मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, you know, it's like it's decided, but I can be that voice for yourself. So I'll definitely go and tweet one statement for all of you, ठीक है? So 1999 में crash course है, my dear kids. So vdnt.in/neetcc पे चले जाओ and use the coupon code DKCC. This is the code so that you can avail this lightning deal in 1999. And how to avail this lightning deal, my dear kids? Okay, so yeah, so click on enroll now, then you have a coupon code that is DKCC, and then you can join the deal. And also the kids who are preparing NEET 2021 के लिए अगर आप join करना चाह रहे हो, everyone, ठीक है? So please join our, you know, long term pro subscription, and trust me, it will help you a lot. अगर if you want like one on one, you know, डाउट क्लियरेंस, इफ़ यू फील दैट कि नहीं यूट्यूब में इतने सारे बच्चे हैं, सो आई वांट सम सेपरेट थिंग फॉर माई सेल्फ, लॉन्ग टर्म प्रो बैच, नो डाउट बच्चे तो होंगे, बट विथ द मेन टीचर यू विल ऑल्सो गेट सम 2-3 टीचर्स, ट्रस्ट मी, ठीक है?
It's very interesting. So you will have live interactive sessions, you have test series, you have assignments, and go to the link vdnt.in/ytpro. बच्चे लोग link available है description पे, those who want to join. If you're in 11th तो आपका NEET 2022 है, if you're in 12th then NEET 2021 is not that far also, right? तो चलो, so उसके लिए you can see 12 months 2252 per month and after applying the code, ठीक है, तो आपको पता ही है, यू विल गेट दैट, राइट, आई विल टेल यू अबाउट इट. सो ये हमारा कंप्लीट करिकुलम फॉर द लॉन्ग टर्म प्रो बैचेस, ठीक है. बहुत सारे बैचेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, इट्स अप टू यू विच वन यू वांट टू चूज. बट अगर आप एक साल का लेते हो तो आपको कोई भी माइक्रो कोर्स आप ले सकते हो. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. नाउ व्हाट इज दैट माइक्रो कोर्स? इफ़ यू somehow have not understood the chapter, आपका वो चैप्टर मिस हो गया, आपको समझ नहीं आया, राइट, सो यू कैन कवर दोज चैप्टर्स. लाइक होता है ना कभी कभी व्हेन यू जस्ट गो अहेड इन द चैप्टर्स विथ योर सिलेबस, आप पीछे का थोड़ा भूल जाते हो, ठीक है. सो इफ यू वांट दैट तो माइक्रो कोर्सेज कैन रियली हेल्प यू. यू विल गेट कंप्लीट क्रैश कोर्स, you have test series, assignments, learning material, और क्या चाहिए, just like a regular coaching institute. And yes, you can see after applying the code DK Pro you can get a discount and 27,000 for 1 year, but for 1 month it's only 2252 और एक lecture का अगर आप देखो तो only ₹7, ठीक है. सो टू गेट दैट डिस्काउंट डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड DK Pro. एंड येस माय डियर किड्स, ये आज का आपका पूरा कैलेंडर है. आई हैड गिवन वन मेंटी क्विज, ओके, एक सेशन था मेरा 3:30 पे, राइट, एंड वी हैव दिस सेशन नाउ, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पार्ट 2. एंड डोंट फॉरगेट PV सिंधु आने वाली है 28 तारीख को, ये राइट. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रजिस्टर्ड? मैम ने रजिस्टर्ड कर लिया है बच्चों. लास्ट टाइम दीपिका भी आई थी तो मैम ने रजिस्टर कर लिया था. आई नो देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द इंटरनेट बट आई रियली लाइक द सेशन, ठीक है. सो now let us start with the topic breeding in plants. So how many of you can tell me what are you understanding by breeding in plants and who is she? Your favorite character in the Friends series if I'm not wrong, right? So what is breeding in plants? Anyone in the chat box? So ma'am, I know that all of you might be answering that ma'am, breeding is nothing, it's a mating process, ठीक है. सो मीटिंग, येलो तो नहीं दिख रहा आई गेस, है ना, येलो थोड़ा सा डल हो रहा है. आई विल टेक या दिस कलर. सो व्हाट इज mating? That is breeding, right? So we already covered animal breeding in the last session and there I used to explain you, I explained you actually that breed क्या होता है, breeding क्या होता है, inbreeding क्या है, outbreeding क्या है, outcrossing and cross breeding, interspecific hybridization, MOET, इतनी सारी चीज़ें मैम ने डिस्कस की है. तो गाइस देर किस बात की, अगर नहीं किया है वो सेशन अटेंड, नीट 2021 वाले किड्स, ओके, बी वेरी सीरियस, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है. सो डोंट लीव द थिंग्स लास्ट के लिए, आज से शुरू करो. तो अगर सेशन बोला नहीं देखा तो पार्ट 1 देखो, अभी पार्ट 2 पे बने रहो, बिकॉज प्लांट ब्रीडिंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक एंड एनिमल ब्रीडिंग अलग है, राइट. सो ब्रीडिंग इन प्लांट्स इज बेसिकली मेटिंग. Now the concept is that it's a usual meeting or we are creating something new in that. So plant breeding जो है, we are mostly consuming plants, you all agree, we are so much dependent on plants. Plants के बिना हमारी नहीं चल सकती है मेरे प्यारे बच्चों. चल सकती है क्या? नहीं. बॉटनी को आप बहुत बोरिंग समझते हो बट आई फील दैट बॉटनी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर बॉटनी नहीं है तो जोलॉजी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना. अगर बॉटनी नहीं है तो वो एक एनिमल, चाहे वो स्पॉन्ज हो, चाहे वो सिलेंट्रेटा का कोई एनिमल हो, वेदर इट इज प्लाटी एलिमेंथस, वो कोई जी ही नहीं सकता, राइट. सो बॉटनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स दे आर द वंस व्हिच आर प्रोवाइडिंग अस क्रॉप्स. So their mating should be in such a way that the moment you get the offspring should be with an improved quality, right. ऐसे ही mating नहीं करनी है अंधाधुन, ऐसे ही आप लोगों को mating नहीं करवानी है plants को. Mating here means plants will undergo pollination and then obviously the double fertilization events, right. So let's just see plant breeding क्या होता है. So plant breeding is we are manipulating the plant species in order to create desired plant species or to create the desired plant types that are better suited for cultivation. It give better yields and are disease resistant. देखो 3 चीज़ें यहाँ पे बता चुकी हूँ मैं बच्चों आपको. एक तो better suited for
कल्टीवेशन, कल्टीवेशन करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो और बेचारा जो ऑफस्प्रिंग है वो मर रहा है, तो क्या फायदा है उस प्लांट ब्रीडिंग का, राइट? सो इट शुड सूट विद द एनवायरमेंट, इट शुड बी सूटेड फॉर द कल्टीवेशन, राइट? इरिगेशन अच्छा होना चाहिए, इट शुड गिव बेटर ईल्ड्स, है ना? जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सो दैट यू कैन सेल इन मार्केट, यू कैन गेट द बेनिफिट, वी कैन मीट द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन, एंड इट शुड बी डिजीज रेजिस्टेंस. Disease resistance means anyone in the chat box? Diseases from bacteria, right? Viruses, fungi. So when we want to have disease resistance, in our case, virus के लिए आप vaccines लेते हो, bacteria के लिए you take antibiotics, fungi के लिए there are some, you know, I guess some cream, right, for fungal infection के लिए. As such आप दवाई तो लेते नहीं हो. Whenever someone is having a fungal infection, you take a tube, okay, you take a cream, you apply that and it goes, right? Similarly, so we should have such kind of a meeting, we should have such kind of artificial meeting, so that the offsprings जो आया, जो crops आए, ठीक है, वो resistance उनके पास ज़्यादा हो, शक्ति ज़्यादा हो, ताकत ज़्यादा हो. So if you see in school, when you go to school, when you see your friends, तो आपके पास इतनी ताकत होती है, आपका कोई friend ओके ठंडी लग जाती है उसको बहुत जल्दी. और आज के दिन में तो ऐसा है कि कोई अगर छींक दे, राइट, इफ समवन इज स्नीजिंग, you will be scared, right? So it means we want disease resistance for human beings. तो क्यों ना हम plants के लिए disease resistance वाला plant बनाएं ताकि crops बर्बाद ना हो, and if the crops are not बर्बाद, then we will be abad, okay? So that is what is the concept of plant breeding. And can you tell me that which revolution brought a change in the plant breeding methods or in the agriculture? Anyone in the chat box? कौन बताएगा, कौन बताएगा? Improved quality of seeds आए थे, एक revolution हुआ था. Yes my dear kids, what is that? Green revolution, है ना? So who can tell me who is the father of green revolution? India का father of green revolution in India. In India, this is one question. And second question, the father of revolution. India का नहीं, पूरे country का, पूरे world का actually, right? So these two questions which I'm giving you, I want the answers in the chat box right now. आप आंसर करो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है इन इंडिया, एंड इन जनरल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है. सो दिस ग्रीन रेवोल्यूशन हैज ब्रॉट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ चेंज, बिकॉज इसने 3 चीज़ों पे काम किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हीट, मेज एंड राइस, ठीक है. सो दिस हैज इंक्रीज्ड द यील्ड सो मच, राइट. सो लेट जस्ट स्टार्ट विद दिस. बट क्लासिकल जो है, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जो बहुत टाइम से कन्वेंशनल होता है, जो बहुत टाइम से चला आ रहा है. क्लासिकल जो अभी अभी चल रहा है, इट्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर लाइन्स? एनीवन कैन यू सी द ब्यूटीफुल एनिमेशन आउट देयर? ये मैंने अभी नोटिस किया, अभी फिर से. सी हाउ ब्यूटीफुल एनिमेशन सुमैया मैम हैज पुट. सुमैया मैम, थैंक यू सो मच, आई रियली लव्ड इट. ओके, सो प्योर लाइन्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, a group of individual, right, having same genotype, right? इनका genetic information, इनका genotype exactly same होगा. So crossing or hybridization of the same genotype kind of plants. Then artificially we are selecting them to produce plants with desirable traits of higher yield. For example, आपने 10 plants लिए, 10 parent, you have taken 10 parents, 10 male 10 female, right? You did pollination, you did the artificial selection. तो जब आप offspring artificially select करोगे, so would you go with the best offspring, या फिर ऐसा जिसकी yield बहुत कम आ रही है, जो बिल्कुल मरा सा है, थकेला है, मरेला है? नहीं, right? You will just go with that kind of a offspring having strong characters, okay? The nutrition आप देखोगे, resistant to disease देखोगे. For example, it happens, right? So when a teacher selects the class monitor, even in Vedantu family we select class monitors, right? So when we select class monitors, तो हम क्या देखते हैं उस class monitors में, my dear kids? हम देखते हैं वो कितना चिल्ला सकता है. I see that, right? I see the boldness, I see the way the person can control the session, the class itself, right? So that's very very important. Okay, so now come to the steps of methods in plant breeding. अब हम ये plant breeding करेंगे कैसे? अगर हमें कुछ क्रिएट करना है ऐसा जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव क्वालिटी हो जिसमें, सो व्हाट विल बी द स्टेप्स? एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, इसके कुछ स्टेप्स हैं. स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1. Step number 1 says that
कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब इन द मार्केट, इन द एग्रीकल्चर फील्ड, अगर आप कोई वीट का क्रॉप देख रहे हो, आप उस वीट के क्रॉप को कुछ चेंज करना चाहते हो उसमें, उसके ऑफस्प्रिंग्स में, आपको आपके पास इन मार्केट वीट की जितनी भी वेराइटीज़ होंगी, कल्टीवेटेड वेराइटीज़ होंगी, ऐसी वेराइटीज़ होंगी जो कल्टीवेट नहीं हो रही होंगी, ठीक है, लोकल वेराइटी होगी, देसी वेराइटी होगी, है ना, अपन तो देसी हैं तो देसी वेराइटी लेंगे, लोकल वेराइटी भी ले सकते हैं। सो ऐसी वेराइटीज़ हम सारी कलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रिजर्व करेंगे ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज। हम कोई वाइल्ड वेराइटी भी कंसिडर करेंगे, स्पीशीज लेंगे, रिलेटिव लेंगे, मतलब हर एक चीज हम देख लेंगे, ठीक है। वीट से रिलेटेड एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक जो जो वेराइटीज अवेलेबल हैं, एंड दीज एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल जीन इन अ गिवन क्रॉप, इन अ गिवन क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू रिमेंबर दिस पॉइंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक पर्टिकुलर क्रॉप की बात कर रहे हैं, राइस का आधा ले लिया, वीट का आधा ले लिया, नहीं, हमें वीट का अगर कंसिडर करना है तो हम वीट क्रॉप के लिए सारे वेराइटीज़ का हम जीन्स कलेक्ट करेंगे। बट आर वी गोइंग टू आइसोलेट द जीन्स? नो। कैन यू सी, हम सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, कैन यू सी, वी आर कलेक्टिंग द सीड्स, ठीक है। तो हम बॉटल में रखते हैं, हम सारे अलग अलग वेराइटीज़ के सीड्स को कलेक्ट करते हैं, एंड यू कैन सी द लेबलिंग ऑल्सो। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या बोलेंगे उसको माय डियर किड्स? द फर्स्ट स्टेप इन एनी प्लांट ब्रीडिंग मेथड, any new thing which you are going to do is basically for plants germplasm, ठीक है। germplasm आपने क्यों बोला? बिकॉज आप germplasm कलेक्ट कर रहे हो, राइट। germplasm इज व्हाट? यू आर कलेक्टिंग द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल जीन्स। सो क्या आप आइसोलेट कर रहे हो जीन्स को? आर यू आइसोलेटिंग द जीन्स? एनीवन इन द चैट बॉक्स टेल मी। मैम पूछ रही हैं क्या आप आइसोलेट कर रहे हो जीन्स को? नहीं, यू नॉट आइसोलेटिंग द जीन्स, आप सिर्फ सारे वेराइटीज़ को रख रहे हो बॉटल में। देखो जैसे हमारे इन सर ने किया है, राइट, मिस्टर एक्स इनका नाम रख देते हैं हम। ओके, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। मूविंग टू द सेकेंड स्टेप, अब आपने सब सारे सीड्स आपने सेलेक्ट कर लिए, तब इवेलुएट करो और पेरेंट्स को सेलेक्ट करो उसमें से। तो वीट के बहुत सारे, इमेजिन करो कि अगर आपको वीट के 20 सीड्स मिले हैं, 20 वेराइटीज़ मिल गए आपको, right? So these 20 में you will select the superior qualities, okay, and then you narrow it down and you got parents, obviously a male parent and a female parent, because भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, ब्रीडिंग करानी है इन प्लांट्स, तो आप तो मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट ही लेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप नहीं कर रहे हो। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फिर उसी प्लांट को हम सीड्स को देखो ग्रो करते हैं, कैन यू सी सीड्स को, सो दैट वी गेट मोर नंबर ऑफ प्लांट्स। हमने एक सीड सेलेक्ट किया 20 में से, 1 फॉर मेल 1 फॉर फीमेल, we saw that this male and female plants are superior in terms of quality, in terms of irrigation, in terms of salinity, in terms of disease resistance। तो कुछ कुछ चीज़ें मेल प्लांट में है, कुछ कुछ चीज़ें फीमेल प्लांट में है, ठीक है। अब हम उन दोनों को मेटिंग करके एक ऐसा बेबी प्लांट बनाना चाहते हैं जिस बेबी प्लांट में दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो। Are you getting my point? So these selected plants are multiplied and used in the process of hybridization. Hybridization is nothing but crossing, in terms of crossing, right? You're creating a hybrid. दो अलग अलग वैरायटी को आप क्रॉस कर रहे हो, अब ब्रीड्स ले रहे हो, दो अलग अलग वैरायटी है, ब्रीड्स है, बट स्पीशीज सेम है, स्पीशीज वीट का ही रहेगा बच्चों, बट वेराइटीज अलग अलग हो जाएंगे। सो आई होप दैट इज क्लियर। स्टेप नंबर 1, you will collect all the data, you will collect all the variety of particular crop, particular species के different varieties, different breed, you will select 2 breeds out of those, and then you will do the hybridization, ठीक है। so evaluation, selection of parents, hybridization done। hybridization करने के बाद you are obtaining a desired crop characters। क्यों करना है hybridization? ताकि हमें एक desired crop character मिले। for example tomato, what is tomato? have you heard about this? Have you heard about this tomato? Yes, it's very easy. You have taken tomato and crossed with potato, but they have some characters in common, my dear kids. No doubt इसका species अलग हो गया, but they have some characters in common if you remember, ठीक है। so ये check करो tomato potato में क्या similarity है, and you get the hybrid the tomato, ठीक है। सो हाई प्रोटीन क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट है जिसके पास प्रोटीन क्वालिटी बहुत ज़्यादा है और दूसरे पेरेंट के पास डिजीज रेजिस्टेंस की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो क्या हम उन दोनों को क्रॉस करेंगे? सो कैन वी एक्सपेक्ट द 2 कैरेक्टर्स इन द बच्चा प्लांट, इन द बेबी प्लांट, द बच्चू प्लांट?
यस मैम, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो सिलेक्शन इवेल्युएशन कर लिया पेरेंट्स का, उसके बाद हमने इसको क्रॉस हाइब्रिड कर दिया, दोनों को पॉलिनेशन करवा दिया, ठीक है। ओके, सो दिस इज द पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग। स्टेप नंबर 3 पे ही हैं हम भी। The two plants to produce hybrids that genetically combine the disease characters on one plant. So for example, you have plant A, you have plant B. Plant A is having a property, let's say it gives a crop which is rich in carbohydrate, clear, and the B which is having a property salinity, ठीक है, टॉलरेंस है सैलिनिटी से, जब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे यू गेट AB, ठीक है, एंड हैविंग बोथ कार्बो प्लस सलाइन। सो दिस इज हाउ वी आर सेलेक्टिंग द पेरेंट्स। तो हम ऐसे भी रैंडमली सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपका मन किया कि मैम इसका कलर तो फ्लावर कलर पर्पल है, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया बच्चों, इसका फ्लावर कलर येलो है, मैम हमें येलो कलर और पर्पल कलर दोनों चाहिए। सो साइंटिस्ट व्हेन दे डू और इन एग्रीकल्चर फील्ड व्हेन दे डू, सो कलर डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स, एनीवन इन द चैट बॉक्स, क्या मैटर करता है, क्रॉप की कौन सी क्वालिटीज मैटर्स टू दी ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्रॉप की कौन सी क्वालिटी मैटर्स टू दी फार्मर, क्रॉप की कौन सी क्वालिटी मैटर्स टू दी इंडस्ट्रियलिस्ट। सो ऑब्वियसली दे विल सी कि प्रोटीन कंटेंट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है, नंबर उसका अमाउंट कितना है, ठीक है, उसकी साइकिल कैसी है, राइट, ड्राउट कंडीशंस कैसे हैं, टॉलरेंस टू पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, दिस आर द कॉन्सेप्ट्स। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। स्टेप नंबर 4, अब आपने कर लिया हाइब्रिडाइजेशन, अब आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे, सेलेक्ट करोगे। अब जो ऑफस्प्रिंग्स आए, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी ऑफस्प्रिंग यू गेट इज वेरी गुड, नो डाउट आपने 2 पेरेंट सेलेक्ट किया है, एक मेल पेरेंट में कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है क्रॉप में, इन फीमेल पेरेंट व्हेन इट अंडरगोज रिप्रोडक्शन इट गिव्स अ क्रॉप हैविंग अ सैलिनिटी, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, टॉलरेंस टू सलाइन सॉइल, ओके, सॉल्टी सॉइल। सो उसके बाद crucial to the success of the breeding objective and requires careful scientific evaluation of the progeny, and these step aids plants that are superior to both the parents. Obviously मेल पेरेंट के पास एक है, फीमेल पेरेंट के पास एक कैरेक्टर, कभी कभी घर पे होता है ना, मेल पापा के पास एक कैरेक्टर होता है, मम्मी के पास एक कैरेक्टर होता है, बच्चे में दोनों कैरेक्टर आते हैं और बूम, राइट, बच्चा बिल्कुल अतरंगी सतरंगी हो जाता है। और ऐसे मम्मी पापा फिर बोलते हैं ना कि ये कहाँ से आया पता नहीं, हम तो ऐसे नहीं थे, ठीक है। सो सेम वे वी actually become superior. Hoo, ha, 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 ha. So yes, so this is the concept that then we will select the superior offspring. जो भी आपने पेरेंट सेलेक्ट किया था उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आए उसमें से भी आप बेस्ट ऑफस्प्रिंग को सिलेक्ट करो, ठीक है। अब उसके पास दोनों कैरेक्टर्स आ चुके हैं मेरे बच्चों, ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स आ चुके हैं। तो अब क्या करो, देखो अब इन सेलेक्टेड लाइंस को इवेल्युएट करो, हर एक प्रॉपर्टी की चेकिंग करो। अब आपने उनको सेलेक्ट कर लिया ऑफस्प्रिंग को, जिनके पास कार्बोहाइड्रेट का भी कैरेक्टर है, जिनके पास थोड़ा सैलिनिटी का भी कैरेक्टर था। पहले तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, आई विल टेल यू, उसी प्लांट को हमें पॉलिनेशन कंटिन्यूसली कराना पड़ता है फॉर 3 सीजन्स, सो दैट वी चेक, ठीक है, उसका नंबर भी बढ़ेगा, हम चेक करेंगे कि 3 ग्रोइंग सीजन्स तक ये अच्छा है या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली देन ओनली इट कैन कम टू मार्केट एंड देन ओनली द पीपल कैन गिव यू मनी फॉर दैट पर्टिकुलर वेराइटी, ठीक है। अगर वो सिर्फ एक ही सीजन तक ग्रो कर सकते हैं, आगे नहीं ग्रो कर सकते, तो फिर प्रॉब्लम है, राइट। सो द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स, और या फिर आई विल टेल यू, जो कैरेक्टर आपने दोनों कैरेक्टर कंबाइन किया, अब उस प्लांट्स को जब आपने आगे पॉलिनेशन करवाया उस ऑफस्प्रिंग को, उस बेबी धमाके प्लांट को, तो जब आपने ऑफस्प्रिंग्स को वापस पॉलिनेट करवाया तो इट शुड नॉट बी लाइक कि अगले 2 साल के बाद वो सारे कैरेक्टर्स गायब हो जाएं, ओके, क्या, या फिर वो ईदर कार्बोहाइड्रेट दिखा रहा है या फिर ईदर सैलिनिटी दिखा रहा है, दैट शुड नॉट हैपन, राइट। सो देन आफ्टर दैट 3 growing seasons we'll select the newly plants, newly selected lines means basically now they are having same genotype, ठीक है, क्योंकि हम उनको इनब्रीडिंग करवा देंगे, जो मैंने आपको एनिमल ब्रीडिंग में ही बताया था, इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी आती है, इसलिए हम उसको 3 ग्रोइंग सीजन तक ग्रो करते ही रहेंगे एंड सेल्फ पॉलिनेशन, राइट, ओके। सो अदर ग्रोइंग, सो देन वी सेलेक्ट, अब देखो, जब आई वॉज बॉर्न, सो व्हेन आई एम अ बेबी धमाका बच्चा, ओके, सो सेम वे व्हेन अ बेबी प्लांट इज प्रोड्यूस्ड, सो विल चेक द क्वालिटीज ऑफ दैट, कुछ ट्रेड्स चेक करेंगे, क्वालिटी कैसी है, डिजीज रेजिस्टेंस है या नहीं, कितना पानी लेता है वो, ठीक है, हाउ मच वाटर इट टेक्स, हाउ मच इरिगेशन हैज़ टू बी गिवन, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप, विच डिजीजेस कैन कॉज लाइक कैन बी हैपन टू द क्रॉप,
और किस से वो रेजिस्टेंस है. सो दिस ऑल डेटा आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दोज वेर द स्टेप्स. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. सो कैन एनीवन समराइज इन द चैट बॉक्स स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 बताओ डीजी मैम को फटाफट से. वेरी गुड. हु कैन टेल मी स्टेप नंबर 1? डीजी मैम इज वॉचिंग यू, राइट? सो germ plasm collection. This was the step number 1. सेकेंड स्टेप था सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन. पेरेंट सेलेक्ट करोगे आप, इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है. देन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, आप दोनों को क्रॉस हाइब्रिडाइज किया, ठीक है. फिर क्या किया था आपने? एनीवन? सिलेक्शन ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. क्यों रिकॉम्बिनेंट्स बोल रहे हैं? बिकॉज उनके पास दोनों कैरेक्टर आ गया. सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट. जितने भी ऑफस्प्रिंग आए आफ्टर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन यू आर सेलेक्टिंग द सुपीरियर, जो सबसे एकदम तेज बच्चा होगा वो, ठीक है. एंड देन फाइनली टेस्टिंग एंड रिलीज. टेस्ट किया, देखो पीछे हमने पढ़ा था टेस्टिंग रिलीज कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स. जो नया वैरायटी आया आपका, ओके, उसका आपने टेस्टिंग किया और रिलीज किया, उसको मार्केट में बेच दिया और आप हो गए करोड़पति, ठीक है. सो विद दैट थिंग, राइट, व्हीट एंड राइस. सो व्हीट एंड राइस की क्वालिटी में इसी मेथड से इम्प्रूवमेंट हुआ था. सो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस को इंक्रीज किया गया ट्रेमेंडसली बिटवीन 1960 टू 2000 ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज. तो हमने ऐसे कुछ वेराइटीज बनाए राइस और व्हीट के, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज बनाए with the help of the plant breeding techniques by following the same steps which you see in the figure now. जो मैंने बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है. एंड फाइनली इन 1963 व्हीट की वेराइटीज आई थी ये वाली, ठीक है. वन इज सोनालिका, राइट, वो आते थे ना कमलिका, सो वैसे सोनालिका एंड कल्याण सोना, ठीक है. सो विच वर हाई यील्डिंग, क्रॉप यील्ड नंबर 1 इज वेरी हाई, डिजीज रेजिस्टेंस तो हो गया ये, क्रॉप यील्ड ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, एंड डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस इन द सेमी ड्वार्फ वेराइटीज दैट इज कल्याण सोना एंड सोनालिका बहुत ज़्यादा था, ठीक है. सो दिस एग्जाम्पल्स आर डैम इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर, ठीक है. सो ये याद रखना कि सोनालिका एंड कल्याण सोना इज बेसिकली हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस, ओके. चलो, सो लेट जस्ट मूव अहेड. अब आया सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज भी आए, जो कि IR8 एक ऑलरेडी एक वेराइटी था राइस का, उससे इसको हमने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है. एंड टाइचुंग नेटिव 1 वेर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966, ठीक है. सो ये कुछ नाम थे, ये आपके डिस्कवरर के सॉरी ऊपर नाम है. सो यू कैन सी द लेंथ, देखो, ठीक है. कोशिकारी, जुकोकू, IR8 SD1, D60, जुकोकी SD1 प्लस D60, एंड ये देखो कैसे हम उसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि वाटर की रिक्वायरमेंट माय डियर किड्स कम हो जाती है. सो इरिगेशन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता बिकॉज ऑब्वियसली नॉट एवरी फार्मर कैन अफोर्ड दैट. क्लियर? सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट फॉर राइस. एंड इससे फिर और ज़्यादा अच्छी वेराइटीज़ आने लगी, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़, जया एंड रत्ना, ठीक है. सो आपने सुना होगा जया, रत्ना, राइट, राइस के नाम है ना. सो व्हेन यू गो टू अ मार्केट यू विल सी दैट जया एंड रत्ना के वैरायटीज दिखेंगे आपको, एंड रत्ना बहुत चमकता है, सो दैट्स वाई द नेम रत्ना, ओके. सो दैट वाज अबाउट द राइस. नाउ कमिंग टू शुगर केन की वैरायटी को कैसे इंप्रूव किया गया, तो आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑन दिस, ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया? इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, आई वांट द आंसर. हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया? सो इन साउथ इंडिया शुगर केन की जो वेराइटी ग्रो होती है वो है सकारम ऑफिसिनारम. सो ये जो सकारम ऑफिसिनारम है, इसकी प्रॉब्लम ये थी, इट कुड नॉट बी ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर और सॉइल it could not be grown in North India, but it was having a great quality. Saccharum officinarium के high thick stem होते थे, ठीक है, highly thickened stem, high sugar content, ठीक है. और सकारम जो बारबरी था वो होता था नॉर्थ इंडिया में. आया रहा है समझ में? सो एनीवन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो वहाँ पे शुगर कैन की ये वैरायटी दिखेगी, बट इसकी प्रॉब्लम थी कि पुअर स्टेम था, उतनी शुगर की कंटेंट नहीं थी. तो हमने क्या किया, सकारम बारबरी किससे क्रॉस करेंगे, सकारम ऑफिसिनारम,
ठीक है. And then what had, so we got the desirable qualities of high yield, thick stem, high sugar, ability to grow in the sugarcane areas. तो इनके पास एबिलिटी थी ग्रो करने की नॉर्थ इंडिया में, ऑफिसिनारम की एबिलिटी थी ग्रो करने की साउथ इंडिया में. तो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की है ये अपनी, something something, right? So that happened and we got the new variety of sugarcane. So I hope that is clear to everyone. And the last is millet. So hybrid maize, yes, की varieties थी, jowar, bajra were developed in India, and this was also having high yield and resistant to water stress. ये important है, वाटर स्ट्रेस. ठीक है, पीछे हमने देखा व्हीट के केस में सेमी ड्वार्फ वेराइटीज, राइस के केस में सेमी ड्वार्फ वेराइटीज, एंड दोज वेराइटीज वर हैविंग हाई यील्डिंग, resistant to disease, high crop yield, resistant to disease, clear. And then we saw the wheat rice के बाद हमने देखा शुगर केन, जहाँ पे मैंने आपको बताया पुअर क्वालिटी ऑफ शुगर था, पुअर स्टेम था फॉर दी किसका, सकारम, आई फॉरगॉट, बारबरी, हाँ, एंड सकारम ऑफिसिनारम, उसके पास बहुत अच्छे थिक स्टेम होते थे, शुगर का कंटेंट ज़्यादा था, बट बेचारा नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पाता था. तो हमने दिमाग लगाया, दोनों को मिला दिया, एंड वी गॉट नॉर्थ साउथ का एक मिश्रण, एंड दैट वाज द वेराइटी नाउ ग्रोइंग इन इंडिया, एंड दैट इज द वेराइटी नाउ ग्रोइंग इन नॉर्थ इंडिया. Okay, and that was all for today's session. I hope you all understood the steps of plant breeding. ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ो, read the textbook, read the process, make beautiful notes. ठीक है, I am always here to help you out, and please if you like the session, subscribe to our channel. We need made easy. And yes, lightning deal के बारे में I already told you, but again मैं बता देती हूँ, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, so please join our crash course vdnt.in/neetcc, DKCC पे चले जाना, उसके बाद मतलब कूपन कोड अप्लाई कर देना, and you can get the offer in 2000. ठीक है, 2000 में सारी चीज़ें, and yes, long term batches you already know. If you want to join, apply the code DKPRO so that you can get a discount. Okay, so please my dear kids, like करो session को and subscribe करो, bell icon पे click करो, so that this videos goes to every student in the world and they see the plant breeding methods, they understand, क्योंकि थोड़ा सा complicated लगता है बच्चों को, but trust me, it's very easy. ठीक है, it's very easy, you just have to think like a farmer. Okay, so VNeet official is a link, join our telegram group and get a chance to win Vedantu t-shirt. So like, I want all the बच्चा लोग in the session, in the chat right now to like the session. ठीक है, share करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, एंड दैट इज जस्ट माई रिक्वेस्ट. ओके, सो बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच माई डियर किड्स, विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, एंड दे विल डिस्कस पार्ट 3 एंड विल कंप्लीट. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर.